لوگوں کو جو ہے وہ غرور اور تکبر سے مربوط کر دے. نہیں، شعر کی خصوصیت یہ ہے کہ شعر کی غذا جو اللہ نے مقرر کی ہے، شعر اس غذا کو چھوڑ کر دوسری غذا کبھی نہیں کھاتا. یہ شعر کی فطرت ہے، خصوصیت ہے. شعر بھوکا مر جائے گا مگر کبھی گھاس نہیں کھائے گا. ہم نے میسور والوں سے کہا، میسور والوں سنو، جب شعر کو پتا ہے کہ میری غذا گوشت ہے، گھاس نہیں ہے، تو وہ مر جاتا ہے مگر گھاس نہیں کھاتا. یہ شعر کی فطرت ہے. ویسے ہی شراب پینا یہ مومن کی غذا نہیں ہے. مومن کی غذا تو آب زمزم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شراب تو کافروں کے لیے ہے، شراب تو عیسائیوں کے لیے ہے، شراب تو یہودیوں کے لیے ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کے لیے شراب نہیں ہے. تو جیسے شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا، ویسے مصطفیٰ جان رحمت کا غلام پیاسا مر جائے گا مگر کبھی شراب کے قریب نہیں جائے گا. یہ شیر اس کو کہتے ہیں، شیر اس کو کہتے ہیں. ہم تو جو منہ میں آیا، جو ہاتھ میں آیا منہ میں ڈالا. کبھی شراب، کبھی شباب. اللہ اکبر. پھر شیر کی فطرت کیا ہے پتہ ہے؟ شیر کبھی کسی کی نقل نہیں کرتا. آپ سوچیں گے آج آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ میں یہی بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے پیر غوث الاعظم دستگیر کی چوکھٹ کا کتا شیروں کو خطرے میں نہیں لاتا. میرے امام نے کہا کیا ادب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں وہ بھی تو دیتا رہو پہرا. سبحان اللہ. شیر کی دوسری خصوصیت یہ ہے، جوان بڑے شیر بنتے ہو نا، شیر کسی کی نقل نہیں کرتا. لوگ اس کی نقل کرتے، گرانے میں اس کی نقل کرتے، چلنے میں اس کی نقل. شیر نقل کسی کی نہیں کرتا. بتایا جا رہا ہے شیر کی ایک دن کی زندگی، مطلب تم کسی کی نقل نہ کرو، ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہاری نقل کریں. تم تو چلنے میں ہیرو کی طرح نقل کر رہے ہو، یہ گیدڑ کا طریقہ ہے، شیر کا طریقہ نہیں. کمر مٹکا کر چل رہے ہو، ہیرو نے بالی پہنا تم نے بھی پہن لیا، ہیرو نے پھٹی پینٹ پہنی تم نے بھی پہن لیا، ہیرو نے کوئی ڈائلاگ کا تم نے بھی کہہ دیا، ہیرو نے اگرچہ کفریہ کلمہ کہہ دیا وہ تم نے بھی کہہ دیا. یہ حال ہے نقل کا. نقال مت بنو، شیر کی ایک دن کی زندگی جیو. یعنی شیر کسی کی نقل نہیں کرتا، سب اس کی نقل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اے مرد مومن، تو کسی کی نقل نہ کر، اس لیے کہ تیرے لیے اگر آئیڈیل بنا کے کسی کو بھیجا تو فلمی اداکار کو نہیں، سیریل کے اداکار کو نہیں، کرکٹر کو نہیں. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم اگر نقل کرنا چاہتے ہو تو محبوب خدا کی نقل کرو، جس کے لیے کہا گیا ہے تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نقل کرنے جو اصل ہے وہ نقل کیسے کریں؟ مثال بری لگے تو معاف کرنا، میرے بڑے بوڑھے میرے علماء معاف کریں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھو جو اصلی عورت ہوگی اس کو بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو اصلی مرد ہوگا اس کو بھی بننے کی ضرورت نہیں. بنتا کون ہے؟ نہ جو ہی میں ہوتا ہے نہ وہ شی میں ہوتا ہے. سارا میک اپ دوستیں کرنا ہوتا ہے. عورتوں سے زیادہ وہ مٹکے، عورتوں سے زیادہ میک اپ وہ کرے، عورتوں سے زیادہ لچک پچک اس میں ہو، عورتوں سے زیادہ لپک جپک اس میں ہو. حالانکہ کیوں؟ اس لیے کہ ہے نہیں، اس لیے کسی کی نقل کر رہا ہے. نقل کو نقل کی ضرورت ہے، بلکہ نقل کو نقل کی ضرورت ہے، اصلی کو نقل کی ضرورت نہیں ہے. تم اصلی ہو، اصلی مومن ہو. مومن تمہارے سروں پر یا جو الذین آمنوا کا خطاب تمہارے سروں پر ہے. اللہ
है, लेकिन कुदरत ने कहा मूसा तुम्हारा दौर उसके दौर से पहले है, तुम्हारा दौर महबूब के दौर से पहले है, इसलिए जो तुमने दुआ की कि उनका उम्मती, वो दुआ करके उम्मती बनना चाहते हैं, उनके सदके में अल्लाह ने बगैर दुआ के हमें उम्मती। सुभान अल्लाह। किसकी नकल कर रहे हो? नचनियों की। किसकी नकल कर रहे हो? सीरियल के अदाकारों की। किसकी नकल कर रहे हो? कौड़ियां खेलने वाले, जिसकी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं, उसकी नकल कर रहे हो, वो भी गुनाह में। हमारे मजहब में तो इबादत में भी गैरों की नकल जायज नहीं है। जिस मजहब में इबादत में भी गैरों की नकल जायज न हो, उस मजहब में गुनाह में गैरों की नकल की इजाजत कैसे हो सकती? मिसाल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हिजरत करके जब मदीने मुनव्वरा गए, ध्यान से सुनना, इबादत में भी गैरों की नकल न करो, यहूद और नसारा की नकल न करो। हिजरत करके मदीने मुनव्वरा गए तो देखा यहूद 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं, 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम को रात से आगाह करते हुए खुद ही सवाल किया, ये रोजा क्यों रखते यहूद, 10 मुहर्रम को क्यों रोजा रखते हैं? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन और फिरौनियों से निजात मिली थी, उस शुक्राने में ये रोजा रखते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मूसा हमारे नबी हैं और इनसे ज्यादा मूसा के लिए, मूसा की इस नेमत पर रब की बारगाह में शुक्राना अदा करना हम पर ज्यादा लाजिम है। इंशाअल्लाह इनकी मुखालिफत भी करेंगे और मूसा की याद भी मनाएंगे, मगर तरीका ये होगा कि ये सिर्फ 10वीं मुहर्रम को रोजा रखते हैं, हम 9 को भी रखेंगे और 10 को भी रखेंगे, ताकि यहूदियों से मुशाबियत भी ना हो और जश्न मूसा भी हो जाए। तो जिस मजहब में इबादत में गैरों की नकल जायज नहीं है, उस मजहब में गुनाह में गैरों की नकल की इजाजत कैसे? बल्कि हुजूर कितनी गैरत करते थे नकल से। मक्के में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब कंघी करते थे सरे अनवर में, तो अपने बाले मुबारक को यूं ही कंघी करके संवारते थे, यूं ही संवारते थे जुल्फे मुस्तफा को। बल्कि आप मुझसे बार बार सुन चुके, उनकी जुल्फों को संवारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उम्मत की तालीम के लिए संवारते थे, क्योंकि उनकी जुल्फे कभी बिखरी ही नहीं, कभी जुल्फे परेशान नहीं हुई, हमेशा वो सजी रहती थी। बल्कि नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने कंघी करके संवार दिया, जैसे किसी ने कंघी करके संवार दिया। कौन कंघी करता था? इस रात से पर्दा उठाते हुए मेरा इमाम कहता है, शान है पंजे कुदरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शान है पंजे कुदरत, कुदरत का पंजा हमारे पंजों की तरह नहीं है, शान है पंजे कुदरत, तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे कैसे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी के बाल बहनें संवारे, किसी के बाल अम्मी संवारे, किसी के बाल बहन संवारे, किसी के बाल बीवी संवारे। कुर्बान मुस्तफा जान रहमत की अजमतों पर पंजे कुदरत जिसके बालों को संवारे, शान है पंजे कुदरत, तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे गेसू। और गेसुओं की बात आई तो 14वीं सदी का मेरा मुजद्दिद यूं कहता है, चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे गेसू, और बढ़कर शिकने नाश पे वारे गेसू, भीली खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। और जब तेल लगाते थे तो शान ये होती थी, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से लगा। क्या एक सुन्नत भी बता दूं चलते चलते, लोग इतना इतना तेल लगाते हैं, जबकि सुन्नत मुस्तफा ये है, सर में तेल इतना डालो कि बालों से टपकने लगे, बालों से टपकने लगे, इतना डालो। अगर सुन्नत के मुताबिक डालना है तो इतना डालो, कंजूसी मत करो। और जो सर में रोजाना रात को सोते वक्त सर में तेल डालता है, अल्लाह उसको जल्दी बुढ़ापा नहीं देता, उसकी जवानी देर तक कायम रहती है। दूसरी बात यह है, उसका कुव्वत हाफिजा देर तक कायम रहता है। तीसरी बात यह है, उसके बाल जल्दी सफेद नहीं होते। इस तरीके से बेशुमार बातें हैं, अब इसी पर बात न करने लग जाऊं। अर्ज ये कर रहा था, हुजूर जब बालों में तेल डालते तो हुजूर की जुल्फों से कतरे कतरे वो तेल के टपकते, तेल के कतरे
बालों से रजा, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे ये सो, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे ये सो। पता है सुबह आरिस किसे कहते हैं? सुबह दो तरह की होती है, एक सुबह काज़िब और दूसरी सुबह सादिक। सुबह काज़िब का कोई ठिकाना नहीं, जो सुबह सच्ची सुबह होती है तो बादलों से रोशनी फूटती है। बादलों से रोशनी कैसे फूटती है? बीच से, इधर से कालक अलग होती है रात की, इधर से कालक अलग होती है और बीच से रोशनी फूटती है। और फिर उस हल्की हल्की सुबह में सितारे यूं झिलमिलाते हैं। मेरे इमाम कहते हैं इधर के काले बाल एक रात, इधर के काले बाल रात का दूसरा हिस्सा, और ये बीच में जो चेहरा चमकदार है ये सुबह है सुबह, ये सुबह है सुबह, ये सुबह है सुबह। जैसे उस हल्की हल्की सुबह में सितारे झिलमिलाते हैं, रात इधर एक हिस्सा इधर, और चेहरे की सुबह और उसमें जो तारे झिलमिलाते हैं। इमाम कहते हैं कि जब बाल से तेल के कतरे टपकते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ईरान सुबह हो रही है और सुबह आरिस पर सितारे झिलमिलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तेल की बूंदे, लोग कहते हैं क्या आला हज़रत लगा रखते हैं, हम कहते हैं किसी ने ऐसी बात नहीं है इसके मुस्तफा की 14वीं सदी में वो ना कर बताओ। हम कितने कबीले नहीं देते, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले कोई ड्रामा देखने आए, जरा वो भी तो कहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे उस आशिक़े रसूल के नाम से अमल्ले की तरह दीवार गूंज जाए, कहिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से, और मेरा ईमान कहता है, मेरा विजदान कहता है बेदेखे कोई ये कह ही नहीं सकता। जलवा देखा था तभी तो कहा, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे। सुभान अल्लाह, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे के। तो हुजूर अलैहिस्सलाम बगैर मांग की कंघी करते थे। जब मदीने मुनव्वरा आए, मदीने मुनव्वरा आए तो देखा कि यहूदी उलमा भी जब कंघी करते तो मांग नहीं निकालते। मेरे नबी को गवारा न हुआ कि यहूदियों से मुशाबिहत हो जाए, गवारा नहीं हुआ। अरे सिर्फ सर संवारने में यहूद से मुशाबिहत ना हो जाए। हुजूर को पसंद ये था बगैर मांग की कंघी करना, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा आए तो वो यहूद पलीद से मुशाबिहत न हो, कातिलाने अंबिया से मुशाबिहत न हो, तो मेरे नबी ने मांग डालना शुरू किया। लेकिन वो मांग भी ऐसी मांग थी, ऐसी सीधी निकलती थी जिसे सिरात मुस्तकीम से तशबीह दे दे तो बेजान नहीं, ऐसी सीधी निकलती थी कि उसकी इस्तिकामत को बयान करते हुए फिर मुझे आला हज़रत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहते लैलतुल क़द्र में मतलइल फज्र हक। सुभान अल्लाह। लोगों को तो नबी बड़े भैया के सिवा कुछ नजर न आया, लोगों को तो नबी गांव के चौधरी के सिवा कुछ नजर न आया। लोग कहते क्या बात करते हैं दूसरों की, हम कहते उन्होंने ये बात की है। हमारे नबी को गांव का चौधरी कहा, उन पलीद चौधरियों ने, दीन के बातिल चौधरियों ने मेरे नबी को उठा के देख लिया, तक़वियतुल ईमान देख लिया। मेरा उन्वान वो नहीं है, लेकिन आज नौजवान कहते ये सुन्नी उलमा को क्या हो जाता है, अच्छी बात करते करते उधर चले जाते। अरे अगर आपको ये ना बताया जाए तो आप उन पलीदों से बचोगे कैसे?
लोग कहते क्या मसलक मसलक की बात लगा रखी, आप कहते मसलक नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मसलक ही कब्र तक जाएगा, मसलक ही हाशिर तक जाएगा, और मसलक ही हाथ पकड़ कर जन्नत में ले। हक है इमाम ने कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राय खुदा, वो क्या महक सके जो ये सुराग लेके चले, और लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और मसलक वालों की शान ये जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार। जन्नत में जब जाएंगे हमारी कब्र ही जन्नत बनेगी। अगर कब्र में कफन में मसलक सलामत दे गए, आधा तीतर आधा बटे नहीं, ये भी सही वो भी सही, इल्मे गैब का मुनकिर भी सही, इल्मे गैब का इकरार करने वाले भी सही, नबी को मुर्दा कहने वाले भी सही, नबी को जिंदा कहने वाले भी सही। ये बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बाबर रहमान राम राम ये नहीं चलता इस्लाम में। इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान कोई रास्ता नहीं। बीच का रास्ता मत निकालो, या कोई काफिर होगा या कोई मोमिन होगा, दोनों सच कैसे हो सकते हैं? नबी को जिंदा कहने वाला सच्चा होगा, और नबी को तो मुर्दा कहने वाला सच हो ही नहीं सकता यार। किसी दोस्त को भी देखा कि अपने यार को मार के मिट्टी में मिला दे, किसी दोस्त को यार को देख जिसकी खातिर कायनात बनाई, जिसकी खातिर उसको मार के मिट्टी में मिला दिया जाए। और फिर यार मेरे अजीज ये तो सोचो, जिसके लिए महफिल सजती है, जब तक वो महफिल में रहे कभी स्टेज हटाया नहीं जाता, कभी लाइट बुझाई नहीं जाती, कभी पट्टियां हटाई नहीं जाती, कभी पब्लिक को भगाया नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि तेरे लिए तो सजाया है स्टेज। जब तक तू रहेगा चाहे रात भर रहे, कोई तेरी महफिल में बैठे ना बैठे, लेकिन मुंतजमीन तो तेरे लिए फर्श राह करे रहेंगे अपनी आंखों को। नहीं हटाएंगे स्टेज, नई लाइट बंद करेंगे, नई पब्लिक को हटाएंगे, नई पट्टियां हटाएंगे, नई कुर्सियां हटाएंगे। क्यों? यार तेरे लिए सजाई है महफिल कुर्बान। अरे तूने अगर मुकर्रर खुसूसी की आमद के लिए जो है वो महफिल सजाई, जब तक वो रहे महफिल सुनी नहीं हो सकती, लाइट बंद नहीं हो सकते, स्टेज नहीं हट सकता, किसी को बताया नहीं जा सकता। नादान, जैसे तुमने का अपनी ये जलसे की अंजुमन सजाई बिला तमसील, कुदरत ने यार के लिए दुनिया की अंजुमन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर कभी सूरज का लाइट लगा दिया, सुभान अल्लाह। कभी चांद की चांदनी से कायनात को रोशन, सुभान अल्लाह। कभी खिलते हुए गुलाबों से कायनात को सजा दिया, कभी दरख्त को हरे लिबास पहना करके यार की मोहब्बत में उन्हें सजद शादाब कर दिया, कभी बलखाती हुई नदियों का हुस्न दे दिया, कभी खिलते हुए आबशार दे दिए, कभी शफक का जमाल दे दिया, कभी उफक की सुर्खी दे दिया, कभी पपीता की पी दे दिया, कभी चिड़ियों की चहक दे दिया, कभी ताऊस की